Sharing my screen with you. Okay. Yes. Right. So अब तक के points E तक clear है सबको? Yes, Now, ma'am. language. It means what kind of language you are using. The language should be in such a way that the other person understands it very easily. सामने अगर हिंदी में बात कर रहा है तो आपने हिंदी में बात करनी है, पंजाबी में बात कर रहा है पंजाबी में करनी है, इंग्लिश में बात कर रहा है इंग्लिश में करनी है. इट मींस आप उसकी लैंग्वेज पैटर्न को समझ रहे हो एंड देन आप उससे बात कर रहे हो. And when we are talking about language over here, it also means what kind of non-verbal language also you are using. It means verbal content, again non-verbal content, right? And then again, L stands for limited time frame. Means this counseling has to have between a limited time frame. It is not like that you have a liberty of, you know, कि आप कितने time तक इसको बस सारा दिन लेते जाओ, as if you have in friendship कि आप सारा दिन बात कर रहे हो अपने friends से. So इसका एक ये दायरा है कि ये limited time frame के अंदर आपको उसको compile करना है, right? So limited time frame means you know, a duration of 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes or maximum 60 minutes depending upon, you know, कि आप कितना उसमें टाइम दे रहे हो. यूजुअली क्या होता है, when you are a beginning counselor, तो यूजुअली वो 60 minutes तक जाता है, but you know, जब आप काफी सारे केसेस हैंडल करते हो with number of experience you gain, तो आप उसको 30 minutes में भी कर देते हो. इट मींस जो बाद में आप जो क्वालिटी आप 60 minutes में दे रहे हो, अब you are trained enough to give that quality in 30 minutes, right? So that you have to decide कि आपका time frame क्या रहेगा per counseling session का. And then introspection means you have to help the client to understand deeply what actually the client is going through. तो अपने आप को introspect करेगा, the client will see कि उसकी strength क्या है, उसकी weaknesses क्या है. All right? And then negotiation. Negotiation means when I told you that you have to reach a specific solution, it means you have to figure out all the solutions. Maybe client has come up with a specific problem. So what you have to do, you have to first figure out all the alternative course of actions, all the alternative course of solutions that are available. And then you have to, you know, identify the pros and cons of each solution. And then figure out which one solution is best. So आपने उसको टॉप रैंकिंग पर रखना है, उसके बाद आपने सेकंड सॉल्यूशन को रैंकिंग पे रखना है. इस तरीके से आपने सारे जो सॉल्यूशंस हैं उनकी आपने रैंकिंग देनी है. And then G stands for goal oriented. Goal oriented, it means counseling has to have a goal oriented session, because many times we have seen, you know, जो budding counselors और जो budding psychologists होते हैं, वो ये मिस्टेक आती है कि वो काउंसलिंग सेशंस को ना गोल डायरेक्टेड नहीं रखते हैं. इट मींस कि आपको आज के सेशन में क्या गोल को ऑब्टेन करना है, या थ्रू आउट काउंसलिंग सेशन से किस गोल को आपने ऑब्टेन करना है. जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपको लगेगा कि आपने इस काउंसलिंग सेशन में से कुछ भी क्वालिटी अटेन नहीं करी है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल फॉर अ पर्टिकुलर सेशन एंड फॉर, you know, a series of sessions. एक हमारा long term goal होगा और उस long term goal को achieve करने के लिए we have immediate goals as well. तो एक हम long term goal बनाएंगे और per session का भी goal हमारा बनेगा, so that client gains the clarity कि आज मैंने इस session में ये किया है, इससे मेरा next week का ये goal है और मुझे इसको real life setting में apply करना है, so that even you can measure कि आपने client को उस goal को achieve कर पाया है या नहीं. जब client goal को achieve करते हैं, they will get a sense of achievement, जो अपने आप में ही उनको मोटिवेट करता है कि वो आगे सेशंस में कंटिन्यू आए. नहीं तो उनको लगता है एज इफ दिस काउंसलिंग सेशंस आर गोइंग नोवेयर और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा. सो इन मिड ऑफ सेशंस में भी आकर क्लाइंट कभी कभार बोलते हैं कि यार हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला अगर आपने गोल नहीं बनाया है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कि आपने कहां पहुंचना है. Am I clear to everyone? Any doubt? Keep on asking, Yes, okay? Keep on asking. This is an entirely interactive session. Yes, The more you ask, the more you gain the clarity over the concepts, right? Okay, now the elements of counseling involve the counselor, the counseling, and the counseling environment. Counselor means a person who is actually professionally trained to provide help. Counseling means the person who seeks help, right? And a counseling environment means a place to facilitate the counseling.
maybe it means a room where a proper counseling session can take place, right? So these are the elements of counseling. You know, now the aim of counseling is, just a second. Now the aim of counseling is, you know, a client comes to you with so many knots. उसके mind के अंदर इतनी सारी knots हैं. Can you all see this thread in my hand? Can you all see? देख पा रहा है सब? Yes, ma'am. Now, अगर मैं एक काम करो, quickly I'm giving you a time of 2 minutes. स्कार्फ ले आओ, दुपट्टा ले आओ, कोई हैंकी ले आओ, कोई रिबन ले आओ, कोई ऐसे वूल ले आओ, एनीथिंग. अच्छा, लेकर रखे हो, वेरी गुड. सबने लिया हुआ है? Yes, ma'am. ग्रेट ग्रेट. हाँ जी, इसको ऐसे दिखाओ फिर. शो इट लाइक दिस. परफेक्ट 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 परफेक्ट. अब आपने क्या करना है, इसको एक नॉट मारनी है ऐसे. अब जब आप नॉट मारोगे, आप दोनों एंड से खींचोगे तो क्या होगा? मैम वो जो है, मैम it will strengthen, the knot will strengthen. Yes, ये और ज्यादा स्ट्रेच होती जाएगी, राइट? और टाइटन होती जाएगी. यही होगा. And the more it will become hard to open it up. Yes, उतनी टाइट होती जाएगी, राइट? अब क्या होता है, क्लाइंट डज नॉट नो हाउ टू ओपन दिस नॉट. ध्यान से समझना, क्लाइंट को ये नहीं पता कि इस नॉट को कैसे ओपन करना है. वो दोनों एंड से खींचता है, ऐसे में नॉट जो है वो और टाइटन होती जाती है, राइट? अब एक नॉट लग गई, उसके ऊपर दूसरी नॉट लग गई, उसके ऊपर तीसरी नॉट लगती जाएगी, चौथी नॉट लगती जाएगी, पांचवी नॉट लगती जाएगी, छठी नॉट लगती जाएगी. इट मींस इतनी सारी नॉट्स के साथ क्लाइंट आपके पास आ रहा है. And slowly and gradually, the aim of counseling is आपने एक एक नॉट को रिलीज करना है. And you know, you will be surprised कि क्लाइंट आपके पास कभी ऊपर के सिम्टम के साथ आता है, और जब आप ऊपर की नॉट खोलते हैं तो एक्चुअली नीचे से और प्रॉब्लम्स जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है. Many times, you know, people comes to us and say that we have a sleep problem. यार नींद नहीं आ रही है, और डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हैं. They were like, there was one client who was taking medicine from past 2 years. इंसोम्निया की वो मेडिसिन ले रही थी, नींद नहीं आती थी. बच्चों, इस बात को ध्यान से समझना, नींद ना आना एक ऊपर का सिम्टम है. नींद क्यों नहीं आ रही है? इट मीन्स कि कुछ अंदर है, कोई इमोशन अनरिजॉल्व रह गया है, कोई सिचुएशन माइंड में अनरिजॉल्व है, जो बार बार पॉपअप करके आपके माइंड में आ रही है, जो आपको सोने नहीं दे रही. आप तो ऐसे सारी जिंदगी मेडिसिन खाते जाओ, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक आप उसके रूट पर नहीं जाओगे. हम उसके रूट पर गए. She was taking medicine for past 2 years, but the root was there were 2 incidences in her life जो उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे. उन incidences को रिजॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली इन डेप्थ रूट पर जाना है. कभी कभार क्लाइंट आपके पास एक ऊपर सिम्टम के साथ आता है, राइट? अब जैसे सपोज देयर वाज वन क्लाइंट, उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, उसको ना अपोलो, उसके सर्वाइकल, ये जो नेक रीजन होता है, यहाँ पर बहुत पेन था. ठीक है, यहाँ पर इतना पेन था. अपोलो में उसका ट्रीटमेंट चला 1 मंथ. उसका अपोलो में ट्रीटमेंट चला, सारे टेस्ट हो गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था, कहीं पर कोई डायग्नोसिस नहीं था. फिर उन्होंने, अपोलो के डॉक्टर्स ने उसको पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भेजा और कहा कि उसको ना वाटर के इंजेक्शन, पानी के इंजेक्शन दे दिए, उसको ये कहकर कि ये हेवी डोज है और इस इंजेक्शन को लेने के बाद आपको बेटर लगेगा. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि उस पानी के इंजेक्शन को लेकर उसको बेटर लगने लगा. राइट नाउ इट मींस उन्होंने कहा कि ये तो साइकोसोमैटिक है, फिजियोलॉजिकल नहीं है. This disorder is completely psychosomatic. आप इसको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ.
Then they called us up कि हम ऐसे ऐसे है entire scenario. वो फरीदाबाद से उन्होंने आना था, तो they were like कि कैसे है, मैंने कहा आपको आना तो पड़ेगा. तो they were like कि जब आप आएंगे तो उसको जर्क आता है, then what should we do? मैंने कहा एक बार आप उसको लेकर आइए. तो जब वो आई हमारे पास, you will be surprised to know कि वो इतना बड़ा कॉलर बैंड लेकर आई थी, लगाकर आई थी. हाथ में उसका कैनुला था, बिकॉज उसकी मदर उसको दिन एंड रात दोनों में उसको वाटर की इंजेक्शन दे रही थी, जिससे उसको ये लगता था कि हैवी डोज है, वो रिलैक्स होकर सो जाती. तो रास्ते में भी आते आते जब जर्क लगे तो उसको पानी का इंजेक्शन उन्होंने दिया. दैट नोज एज प्लेसेबो इफेक्ट. हैव यू हर्ड अबाउट दिस प्लेसेबो इफेक्ट? प्लेसेबो इफेक्ट का सुना है? No, ma'am. नहीं सुना. No, ma'am. प्लेसेबो इफेक्ट में क्या होता है, हम क्लाइंट को खाली कुछ ऐसे ही कुछ भी कैल्शियम की पिल्स दे दी या पानी का इंजेक्शन दे दिया, ये कहकर कि ये एक्चुअली इंजेक्शन है या वो वाली मेडिसिन है, और आप देखेंगे क्लाइंट को उसी से ही फर्क मिलना शुरू हो जाता है. इट मींस नथिंग टू डू विद दैट प्रॉब्लम बायोलॉजिकली, इट्स ऑल देयर इन आवर माइंड. तो सेम उसी के साथ था, क्योंकि इसको पानी का इंजेक्शन दिया यही कह के कि ये हेवी डोज है, सो वो प्लेसेबो इफेक्ट था कि पानी के इंजेक्शन से उसको रिलीफ मिल गया. दैट्स द प्लेसेबो इफेक्ट. ठीक है. एंड जब वो हमारे पास आई, हमने जब फिगर आउट किया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो she was having a fear of failure. Can you see? यहाँ पर पेन हो रहा है, एंड इन डेप्थ जब हमने उसको एनालाइज किया, she was having fear of failure. Now ये कहाँ से इसको पकड़ा? बिकॉज इन डेप्थ में हमने उसके साथ टेस्टिंग्स करी. हमारी रोशाक होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बातें चलती हैं उसको फिगर आउट करने के लिए वी हैव सर्टेन प्रोजेक्टिव टेस्ट, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. देन हिप्नोथेरेपी से व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द पर्सन, उसको फिगर आउट करते हैं टू आइडेंटिफाई द वेरियस थॉट्स. तो उसका हमने आइडेंटिफाई किया दैट शी इज हैविंग दैट फियर ऑफ फेलियर. उसको प्रॉब्लम शुरू होती थी अर्ली मॉर्निंग, जब स्कूल जाने का टाइम होता था 6 और 6:30, एंड सबसाइड होती थी जब हाफ डे ओवर हो जाता था 10 और 10:30, जब स्कूल जाने का ऑप्शन ही नहीं रहता था. She was actually avoiding her school. उसको स्टडी स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग दी गई, वहां पर उसका पूरा बेस बनाया गया, एंड देन उसकी पेन अपने आप सबसाइड होनी शुरू. राइट? सो कहां से क्या होता है, कभी कभार तो आपकी प्रॉब्लम बायोलॉजिकल जो है ना, दैट इज पेन, that plays only 30% of role, और हम उस पेन को किस तरीके से देख रहे हैं माइंड के अंदर, साइकोलॉजिकल, that becomes your suffering. Right? So यहाँ पर your purpose is to सारी नॉट्स को धीरे 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 करके खोलना है. जब आप उसको सारी नॉट्स को अलग अलग करके खोलोगे तो एक्चुअली आपको और भी अंदर से चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, जो क्लाइंट को भी नहीं पता, उसके भी माइंड में नहीं है, वो पीछे कहीं बैक एंड में जाकर छिपी हुई है, वो धीरे धीरे सामने आती है. Now, so aim of counseling basically is to help, in fact, is to empower the client to cope with his or her life, then helps the client to explore options so that the client can make his or her own choices and decisions. And then we have to empower the client to take the responsibility for his or her decisions, right? So again, what you have to do, you have to empower the client ताकि client अपनी life को खुद cope कर पाए. हमने सारे options को explore करवाना है. Then client को उसके सब pros and cons बताने हैं. Client को हमने choice दे देनी है. It is his or her life. He has to decide कि उसने क्या decision लेना है. और जो भी वो decision लेगा, it is the responsibility of the client. All right? Right? You do not have to take any decision on client's behalf. ये please ध्यान रखना, आपने कोई भी decision client के behalf पर नहीं लेना है कभी भी. Strictly no. Right? Now, let's do one activity. Close your eyes. Close your eyes, everyone. Now, think about a period in your life when you were very unhappy. जब आप बहुत दुखी थे. In your mind, choose someone in whom you could confide, with whom you could share your pain. What qualities would you want from that person? अपनी जिंदगी के उस पहलू को देखो, उस पहलू को याद करो जब आप बहुत दुखी थे, बहुत उदास थे. उस टाइम पे आपके माइंड में
क्या आया कि आप किस पर्सन से अपने उस दुख को, उस प्रॉब्लम को शेयर करो, अपनी पेन को शेयर करो। आप उस पर्सन से क्या चाह रहे थे, आप उस पर्सन में क्या देख रहे थे, what qualities would you want from that person? Now, open your eyes and write down the qualities of a good counselor. Yes, quickly, I'm just giving you a time of 3 minutes, right? Quickly write down the qualities of a good counselor. Quickly.
हाँ जी, लिखा qualities of a good counselor. Yes, ma'am. Done. हाँ जी, so according to you, what Yes, qualities you are looking in the other person? Someone who listens very well, someone who guides very well, Okay, someone who understands what I am going through, perfect. and who can guide me out from the situation wherein I am stuck by understanding my situation. True. Empathy. Empathy. Ma'am, non-judgmental. Okay, non-judgmental. And ma'am, this happens to me like many times that I don't speak in my session. So मेरी जो counselor है doesn't force me. So the understanding between us, like हम एक घंटा आसानी से बैठ जाते हैं और बात नहीं कर रहे होते हैं. So yeah, that's Right. understanding. Right, right, right. You know, एक flow बनता है and we keep on sharing our things because हमें पता है कि सामने वाला person non-judgmental attitude से हमें सुन रहा है, हमें समझ रहा है, and that person is for me. ठीक है? So yes, great. हाँ जी, what all qualities? Other I'm qualities? a good listener. No Good listener, judgment, perfect. like no mocking or joking, like whatever it is. And should be easy to talk. We should not be feeling like, no, we cannot talk or be restrained that I cannot open up myself fully because that will not lead to complete healing. It will be, there will be some parts in me that I'll not be able to open up. And then should have a calm and comfortable aura because the first and foremost thing for me, it should be like the person sitting in front of me should be comfortable enough that he or she can think that I can actually talk to the person. Then will not share the talks with anyone, like confidential. Maybe even good comfort type and give confidence and support to solve the problem in every step. Great, great. हाँ जी, और कोई इसमें ऐड करना चाहता है? Don't give unnecessary suggestions. Like, sometimes when you share your problems, people are like, yeah, it's gonna be okay. And we know that we are going through something and your okay won't be doing any such thing. So, unnecessary suggestions, I think, people should avoid giving. So, yeah, this is the point. Ma'am, I would also like to add, like, the person should be responsive. Like, we are telling about our, we are telling about our miseries, and the person shows no response. Like, happens, and just no response is such a response, and it's so brutal actually. True. No response. Yes. Anyone wants to add over here something? Ma'am, a counselor should be optimist. Yes. Like when we're talking to them, it should be positive conversation, not turning it into be a negative conversation. Yes. Perfect. Great, great. So I'm happy you all could able to figure out, the good qualities of a counselor. Now, let's discuss more about the qualities in there. The first quality, like, keeping confidentiality, जैसा कि आपने already बता चुके हैं. Confidentiality means, again, जो भी आपने बताया है, client जो है वो उसको अपने तक रख रहा है, वो हर जगह नहीं बता रहा है. तो वो एक confidentiality वाला factor जो है वो होना चाहिए. In fact, the majority of problems we have seen with those counselors who are actually working in school. ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों के अंदर कि ये स्कूल काउंसलर है, तो अगर मैं इनके पास जाऊंगा, मुझे बाकी सारे बच्चे भी देख लेंगे इनके पास जाते हुए, वो क्या सोचेंगे? तो वो कहीं काउंसलर ही ना कुछ बात करते हैं, वहां के बच्चों के माइंड बहुत रहता है कि बाकी सब बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे. एज इफ आई एम गोइंग टू अ काउंसलर, इट मींस मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है. तो वो स्कूल काउंसलर्स के साथ भी ये मेजरली ऑफ प्रॉब्लम जो है वो हम लोग फेस करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं. सो इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू कीप दैट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल. जो भी सामने वाला पर्सन बता रहा है, इन एनी हाउ, इन एनी केस, यू आर नॉट सपोज टू लीक दैट इंफॉर्मेशन only in certain cases, like जहां पर आपको लगता है सुसाइड
की टेंडेंसी है और ये सुसाइड कर सकता है, तो वहां पर आपने उसके क्लोज वंस को बताना है, बट इन अ सच अ वे कि बॉन्डिंग उनकी स्ट्रॉन्ग हो, ना कि इन अ डिस्ट्रक्टिव वे. सो हियर योर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंडली आपने वहां पर रिवील करना है जहां पर ओनली कोर्ट में, जहां पर आपको लगता है कि कुछ लीगल और वो इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, तो जितनी मांगी गई है आपने उतनी ही बतानी. Then empathy, again हम discuss कर चुके हैं. Empathy means putting yourself into the shoes of that other person, but putting yourself into the shoes of that other person, आपने अपने सॉक्स को भी रिमूव करना है. इट मीन्स कुछ भी माइंड में इतना सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं रखना है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज ओवर हियर. फटाफट से खड़े हो जाओ. लेट्स सी आप लोगों में कितनी एनर्जी है. फटाफट से. परफेक्ट परफेक्ट. सब में एनर्जी दिख गई हमें. ग्रेट. अब घर पे अपने अलावा किसी की भी शूज, चप्पल, जूते कुछ भी है वो लेकर आओ. फटाफट से भाग के जाओ, लेकर आओ. लेट्स सी कौन कितनी एनर्जी से भाग रहा है लेकर आ रहा है. अच्छा, ये आपके ही है साक्षी? नहीं, पास में पड़े हुए थे. वो बेनिफिट हो गया जाने का, वो ही नहीं पड़ा आपको कहीं पे. Ma'am, in my room, like in the lower drawers, everyone has their footwear. So अच्छा, my brother's great. almirah is just at the side. ओके. हाँ जी. ओके, डॉक्टर पतिका भी ले आए हैं. यस, व्हाट अबाउट अदर्स? सब ले आए हो? से यस. राइट Yes, योर ma'am. chat box. Yes, Can ma'am. you all at least? Yes, Oh, ma'am. great, 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 great. Now, अब करना क्या है? इन जूतों को, चप्पलों को, जो भी आप लेकर आए हो, जिसकी भी लेकर आए हो, उसको पहनो और उसको पहन के रूम के 5 राउंड्स लगा कर आओ. डन. Yes, जिनके ma'am. 5 Done. राउंड हो गए हैं वो चैट बॉक्स में फटाफट से लिखते जाए डन, सो दैट वी कम टू नो कि आपके जो 5 राउंड्स हैं वो कंप्लीट हो गए. जिनके कैमरास ऑफ है, प्लीज राइट योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स सो दैट वी गेट टू नो कि आपने कंप्लीट कर लिया है एंड यू ऑल आर हियर सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द डिस्कशन पार्ट. डन. ओके, डन डन डन. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. Okay, Hanji, so you all are back. Welcome back. How was your experience? दूसरों के शूज पहन के चलने में किसको मजा आया और किसका क्या एक्सपीरियंस रहा? मजा नहीं आया. हाँ जी, क्या एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर पतिका? मैम बहुत डिफिकल्ट था चलना. वो बहुत डिफिकल्ट था चलना है ना. हम बहुत आसानी से कहते हैं that put yourself into the shoes of that other person. एब्सोल्युटली मैम. नहीं वो होता. कहना बहुत आसान है, जब एक्चुअली उसको करना पड़ता है तो वो डिफिकल्ट है. हमने उसी पे ही मास्टरी हासिल करनी है. बिल्कुल मैम. हाँ जी. और किसने शूज पहने, क्या एक्सपीरियंस रहा कितनों को? Ma'am, चलो आप बताओ. यस, क्या एक्सपीरियंस रहा? ma'am, it was actually very easy for me to walk. It was my father's bathroom slippers actually, because I have already mastered walking in his shoes. Like
I walk in his shoes most of the time. So I tried to walk in his bathroom shoes because they are a bit uncomfortable. But yeah, I was able to walk. Um, a bit uncomfortableness was there, but I could walk properly in it. Because आपने पहले उनके शूज पहन रखे हैं. Yes, ma'am. Great. Yes, ma'am, same with me. I wore my brother's slipper. Same with me. I have my. Same with me. I wore my brother's slipper. अच्छा, आपने अपने ब्रदर के पहने हैं. So you found that comfortable, right? Yes, ma'am. Little bit comfortable. अच्छा, ये बात बताना, जब आपने फर्स्ट टाइम पहने थे तब आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ था? That was definitely uncomfortable, a little uncomfortable because my and his shoe size is same almost. Okay, great. So जब फर्स्ट टाइम पहने तब उस टाइम पे लिटिल अनकंफर्टेबल था, but slowly and gradually you are now feeling comfortable in those shoes, right? So जब भी आप क्लाइंट से मिलते हैं, every client is from a different background और उसकी different problems होती है. आप उसके शूज को पहली बार पहन रहे हो, ठीक है, तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता, बट आपको उसको कंफर्टेबल बनाना है. कैसे? वो हम आगे जो एक्टिविटीज करेंगे हम उसमें सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे. ऑलराइट, नाउ हाँ जी, कोई अपना और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है विद दिस एक्टिविटी? Perfect. Now, the third important quality of counselor is positive regard. Positive regard means अपने सामने client को unconditional love देना है, unconditional positive regard देना है, चाहे वो जिसमें प्रॉब्लम से हो, चाहे उसकी गलती हो, चाहे आपको लग रहा हो आपने जजमेंटल एटीट्यूड किया है, जजमेंटल एटीट्यूड अपने साइड पर रखना है, हमने उसको unconditional positive regard देना है, उसको एक्सेप्ट करना है as it is. Alright? Then respect for others. अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट करनी है. Then transparency means कि आपके जो भी फीस है, जो भी टाइम है, ये सारी चीजों को आप पहले क्लाइंट को बताएंगे. आप कुछ भी चीज हिडन में नहीं रखेंगे. आपका ड्यूरेशन क्या है, अगर क्लाइंट सेशन को मिस आउट करना है, देन प्रोटोकॉल क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी की सारी उसको बताएंगे. तो मीन्स आप कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखेंगे. जो भी आप टूल्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, कोई टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, so whatever you are going to apply, you have to keep that complete transparent, right? And do not provide advice. No advice at all. तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, strictly no. घर पर हमें एडवाइस मिलती है मम्मी से, पापा से, Yes, ऐसा ma'am. करो, ऐसा करो, ऐसा करो. ऑनेस्टली बताना Yes, ma'am. कैसा फील होता है उस टाइम पे? Ma'am, frustration. Like, मतलब Ma'am, हम ऐसे दुख में हैं and you are giving us advice. Just let us be in the pain right now and feel that. ग्रेजुएशन में आ गए यार, अभी भी पेरेंट्स को लगता है कि एडवाइस दे रहे हैं, यही फीलिंग आती है. इतने बड़े हो गए यार, अभी भी कह रहे हैं ये करो, ऐसा करो. लगता है मैम सीरियसली मैम समटाइम्स हैपेंस लाइक कि अगर कोई सिचुएशन है आप वहाँ पे अगर जैसे भी रिएक्ट करो, कभी कहेंगे बचपना दिखा रहे हो, और फिर जब बचपना दिखाओ तो कहते हैं बड़े क्यों नहीं होते तुम. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, करे तो करे क्या. चुपचाप बैठो तो क्यों चुपचाप बैठे हो, और बोल रहे हो तो चुप क्यों नहीं करते. सो सेम वे क्लाइंट को अगर आप एडवाइस दे रहे हो, क्लाइंट के अंदर भी यही फीलिंग आने वाली है. ठीक है, तो कितना अच्छा लगे जब आपको लगे यार पेरेंट्स मुझे अनकंडीशनली पॉजिटिव रिगार्ड से एक्सेप्ट करते जा रहे हैं. वाओ फीलिंग आएगी. Yes, ma'am. वाओ यार, मेरे पेरेंट्स ने तो आज मुझे एक्सेप्ट कर लिया अनकंडीशनली. सेम चीज जो आपको वाओ फीलिंग आएगी, आपने वही वाओ फीलिंग क्लाइंट को देनी है. ठीक है, ओके. नाउ बीइंग जेन्युइन मीन्स आप जेन्युइन जैसे हो, आपने उसी तरीके से बात करनी है. आपने कुछ भी आर्टिफिशियल मास्क प्लीज ऐसा कुछ नहीं है. आपने अपनी पर्सनालिटी के अंदर वो जेन्युइननेस उसको लेकर आना है. इट इज नॉट लाइक दैट आप फेक स्माइल कर रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर आप दुख हो रहे हो, किसी बात का आपको दुख चल रहा है, तो वो नहीं है. हम कहते हैं कि इफ यू वांट टू बिकम अ बेस्ट काउंसलर, सारी क्वालिटीज पहले खुद अंदर से इम्बाइब करनी है, अपनी लाइफ को पहले खुद ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि जब आप क्लाइंट की मदद कर रहे हो आपकी खुद की नॉट सारी खुली हो. अगर आपकी खुद की नॉट्स बंद होंगी तो होगा क्या, आधी इंफॉर्मेशन क्लाइंट की आप सुनोगे और आधी अपने आप ही पास हो जाएंगी. होंगी यस और नो? Yes, ma'am. Absolutely. इसलिए खुद के माइंड को पहले क्लियर रखना है.
की नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दिस ऑल्सो वी हैव सीन मेनी टाइम्स बीइंग इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, वो कहते हैं यार मैं काउंसलर हूँ, इट मीन्स मुझे अगर अपनी कुछ भी अंदर प्रॉब्लम लग रही है मैं डिस्कस नहीं कर सकती किसी से बिकॉज आई एम अ काउंसलर। काउंसलर का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे काउंसलर की मदद नहीं ले सकते। क्या डॉक्टर्स कभी बीमार नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो अगर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो तो अगर आपके भी कोई इमोशन अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, दैट इज परफेक्टली ओके। टेक अ ब्रेक, वर्क ऑन योरसेल्फ, रिमूव दैट नॉट and again start your profession. It's okay to take a break. Self-care is at most important. But yes, जो हमने साइकोलॉजी की लाइन में हमने कई बार देखा है कि अनड्यू प्रेशर वो आप अपने माइंड में रखते हो एंड उसके बाद इट बिकम्स डिफिकल्ट आपके लिए, तो उस चीज को नहीं लेकर आना है। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिलीज योर ओन थॉट्स बिफोर यू स्टार्ट गोइंग इनटू दिस प्रोफेशन, बिफोर यू स्टार्ट काउंसलिंग द अदर पर्सन। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए इस चीज को समझिएगा। क्लाइंट ऑलरेडी दुखी है तभी वो आपके पास आ रहे हैं। Excuse me, ma'am. हाँ जी, Sorry to disturb you, ma'am, but as I told earlier कि अपनी जॉब का थोड़ा इशू आता है। आपकी आवाज लाउडर लाउडर। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है भाई। मैम आई वाज सेइंग कि आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरा जॉब का थोड़ा सा इशू है, तो अब मुझे इस टाइम पे लीव करना पड़ेगा। तो मैम इज देयर एनी वे कि आप जो लास्ट का पार्ट जो मिस आउट हो गया वो आप ग्रुप पर सेंड कर दो। इसको ना हम लोग डेफिनेटली ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है ना बच्चा, वो रिकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे। कल आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपका पार्ट मिस होगा, सो नो वरीज, आप उसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। बट हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लाइव जो आप करते हैं और आपके कुछ डाउट या कुछ एक्सपीरियंस आते हैं, वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मिस आउट हो जाता है उस पार्ट को। सो इसलिए कोशिश करना कि ये 2 आवर्स हमने सिर्फ एवरी सैटरडे मिलना है फॉर 2 आवर्स। तो कोशिश करना उस टाइम पे अगर थोड़ा सा आप अपने वर्कलोड को थोड़ा सा अगर मैनेज कर पाओ, दैट विल बी ग्रेट। अदरवाइज वी आर गोइंग टू शेयर दैट रिकॉर्डिंग विद यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। ग्रेट, ओके, बाय बाय। इस चीज को ध्यान से समझना। अभी ये पेंडेमिक का टाइम है, राइट? अब पेंडेमिक में टाइम में जिसके पास खुद के पास पैसे हैं वही दूसरों के पैसों से मदद कर पाएगा। खुद के पास खाने को है तभी आप दूसरों के खाने से मदद कर पाओगे। मानते हो इस बात को? यानी कि जो चीज आपके पास अबंडेंस में है वही चीज आप दूसरों को दे पाओगे, राइट? अब आपके अंदर अगर दुख है तो आप बाहर क्या दोगे? दुख। क्लाइंट आपसे हैप्पी और सेटिस्फाइड होकर नहीं जाएगा। अगर आप अंदर से खुद खुशी हो, आपका ऑरा फैलता है। आप खुद खुश हो तो आप बाहर क्या स्प्रेड करोगे? हैप्पीनेस। और जब आप हैप्पीनेस स्प्रेड करोगे, क्लाइंट अपने आप हैप्पी होकर जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, नाउ देन being non-judgmental, this we have already discussed that आपने कोई भी जजमेंट नहीं देनी है, that you are right, you are wrong, आपने ये सही किया, ये गलत किया, no judgment at all, right? Then good listener, कभी कभार तो बात करते करते अगर आपने सुन ही लिया ना अगले पर्सन को, कभी कभार तो सुनते सुनते ही उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। स्पेशली जब फर्स्ट जो हमारा केस आइडेंटिफिकेशन सेशन होता है, उसके जस्ट बाद कभी भी जब आप अपना प्रैक्टिकल वो स्टार्ट करोगे, जस्ट आफ्टर दैट कोई भी अपना दूसरा सेशन मत रखो, बिकॉज एक सेशन की जगह 2 सेशंस भी लग सकते हैं, बिकॉज क्लाइंट इन अ मोड ऑफ जब वो बता रहा है तो एट टाइम्स इतने इमोशंस रिलीज होते हैं कि इन बिटवीन आप नहीं कह सकते हो ओह योर टाइम इज अप। आप एब्रप्टली उसको नहीं कह सकते हो इन बिटवीन। तो फर्स्ट केस जब आपका फर्स्ट डायग्नोस्टिक सेशन है, उसके बाद जब वो रिलीज होता है, आप पूरा प्लान बना देते हो, ट्रीटमेंट प्लान, उसके बाद आप टाइम लिमिट के साथ चल सकते हो, बट फर्स्ट सेशन में नहीं, बिकॉज आप क्लाइंट को हेवी हार्ट के साथ नहीं भेज सकते। दिस इज आपने ये चीज हमेशा के लिए अपना लेनी है, किसी भी सेशन में क्लाइंट जो है वो आपके यहाँ से हेवी हार्ट ना जाए, ठीक है? वो ध्यान रखना है। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग, आपने क्लाइंट को समझना है एंड देन एक वार्म फीलिंग देनी है, उसको लगे हाँ दिस इज द राइट प्लेस,
मुझे यहाँ आकर एक बहुत ही कंफर्ट वाली फीलिंग है, वो आपने उसको कंफर्ट, उसको वार्मथ दिया। ओके, now close your eyes, close your eyes, close your eyes. Think about a secret that you have. Nobody else knows about that secret. One day, you think about sharing this secret with someone whom you trust. How would you feel if that person told you a secret to other people around? आपका कोई सीक्रेट था, आपने अपने फ्रेंड को या किसी भी पर्सन को बताया, लेकिन आपको पता लगता है कि उस पर्सन ने आपका सीक्रेट जो है वो जगह जगह बता दिया है। उस टाइम पे आपको कैसा महसूस हुआ? How would you feel at that time? Yes, open your eyes. Anji, कैसा लगेगा? You can write your responses in the chat box. I would feel really betrayed by that person. Angry. I would be confiding in that person. Then I would get to know that that person has talked about me in some other way. Then that would be a feeling of betrayal would be there. Okay. We also be loss of trust that you won't be able to tell that person anything else about your life. Yeah, आप कभी उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे दोबारा. Angry, hurt, yes. Like there other would be than frustration, maybe frustration too. हाँ, बिल्कुल टूट जाओगे, right? Ma'am, I will know that that person was an imposter. हाँ? Ma'am, I will know that the person was imposter in my life. Will become monster in your life. Ma'am, imposter among us. Okay, so मुझे एक चीज बताओ, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ एक्चुअल में? हुआ है? Yes, ma'am. हुआ है मैम। Yes, ma'am. It has सबके happened. साथ हुआ है, आई एम श्योर सबके साथ हुआ है। उस टाइम तो बहुत बुरा लगा ना, डिशुम डिशुम करने का भी मन किया, यार मेरे हाथ में आता तो बस। बट द पॉइंट इज, वो सारी चीजों से हमें समझना है कि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। Being a counselor, right? Okay, now. Okay. Yes, as you can see picture in front of you, counselor means आपके सिर पे एक crown है, crown to protect and keep the helper secure when listening to difficult stories. आपने एक इतना बड़ा crown पहना है ताकि आप उसकी difficult stories को सुन पाओ and simultaneously आप उसकी help कर पाओ। एक राजा होता है ना प्रजा में, राजा क्या करता है? अपनी प्रजा की सारी प्रॉब्लम्स को सुनता है और उनको मदद करने की कोशिश करता है। एक अच्छा राजा यही होता है। So आपने भी राजे की तरह अपने सिर पर एक क्राउन डालना है and your role and responsibility over here is to listen to the difficult stories of other person and to help them out, right? And then huge ears, बड़े-बड़े कानों का यहाँ पर क्या मकसद है? ताकि आप उसकी बातों को केयरफुली सुन पाओ और उसमें से इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाओ, alright? A big heart to receive the story with empathy and respect. एक बड़ा सा हार्ट चाहिए ताकि आप उसकी स्टोरी को आराम से सुन पाओ with empathy and with respect, right? Then a big bag जिसके अंदर आप अपने सारे सर्टिफिकेट, सारा अपना एटीट्यूड, सारा प्राइड को उस बिग बैग के अंदर डाल देना है। उसके सामने हमने प्राइड नहीं शो करना है। You have to be a down to earth person. आप देखोगे डाउन टू अर्थ अगर आपको कोई लगेगा तभी आप कंफर्टेबली उसके साथ बात कर पाते हो। अगर कोई ऐसे करके इगोइस्टिक करके होगा, डू यू फील कंफर्टेबल शेयरिंग योर स्टफ विद दैट पर्सन? Do you feel comfortable? No. So what you have to do, you have to keep your degrees aside. उसको बैग में रख दो, वो आपके खुद के लिए है, not for the client. Okay. Then big feet that are in solid contact with the ground. Again, big feet ताकि आप ground के साथ connected रहो, हमेशा down to earth. Then big eyes to notice details in mind and body so that आप उसकी non-verbal gestures को भी note कर पाओ, जो वो नहीं बता रहा है या कहीं पे वो flutter कर रहा है, बताते बताते रुक रहा है, अटक रहा है, या eyes कम हो गई है, या eyes इधर से उधर आपसे distract कर रहा है. Please, there is something that you have to catch and you have to figure out कि यहाँ पर क्या चीज है जो मिस आउट हो रही है.
Alright? Then a small nose to protect from bad smell. At times client किसी भी उससे आए और कभी कभार वो स्टिंग भी कर रहे होते हैं, that's perfectly okay. उस टाइम पे आपने नाक नहीं चढ़ानी है कि यार आपसे बहुत स्मेल आ रही है, या बार बार उसको इस तरीके से कुछ आप शो कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो एज दैट अदर पर्सन इज स्टिंकिंग एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड. सो वो चीज हमें अवॉइड करनी है. टाइनी माउथ आपने बीच बीच में नहीं बोलना है. आपने सामने वाले सर्वाइवर को यानी क्लाइंट को आपने बोलने का पूरा मौका देना है, क्योंकि उसको वो पूरा मौका बाहर नहीं मिला, इसीलिए उसकी नॉट्स बनती चली गई. वो दिल की बात बाहर नहीं कर पाया, इसलिए उसकी नॉट्स बनती चली गई. तो आज वो आपके पास आया है, दिल से उसको बात करने दो. उसके लिए अपने माउथ को हमने कम से कम यूज करना है. कैसे करना है वो नेक्स्ट वीक में हम सीखेंगे. हमने कितना बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है. राइट. Then a bladder that can sit for a long time. जैसे मैंने आपको कहा कि at times जो फर्स्ट केस होता है उसमें कभी कभार क्लाइंट जब बताना शुरू करता है तो बताता चला जाता है. मे बी उसमें 1 या 2 सेशंस आपके लग जाते हैं, कभी मैक्सिमम 3 भी लग जाते हैं. At times I remember there was one case जिसको 3 घंटे केस डायग्नोस्टिक में हमें 3 घंटे लगे. That client cried like anything. लेकिन जब उसने सारी बात बताई उसके बाद she was so relaxed. उसको लगा मैम मेरी तो आधी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है बताते बताते ठीक हो गई. ठीक है. सो वो आपने कंफर्ट जोन उसको देना है. और उस टाइम पे ब्लैडर आपका बिल्कुल वो होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपको बार बार वॉशरूम के लिए भागना हो, तो वो एक डिस्कनेक्शन हो जाता है बीच में. दैट यू नीड टू अवॉइड. एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस. इट मींस यहाँ पे एक्चुअल में हमने लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं जाना है. इट मींस कि यहाँ पर जो भी क्लाइंट बता रहा है हमारा विजन उससे ज्यादा है, बिकॉज हमारा माइंड खुला है. उसका तो माइंड अभी नॉटेड है ना, उसका माइंड नॉटेड है. वो नहीं देख पाएगा जो हम देख पा रहे हैं. तो हमने स्ट्रॉन्ग लेंस से आगे का डिस्टेंस कवर करके आना है. ऑलराइट. क्लियर है सबको? नाउ Yes. टेल मी हु इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 काउंसलर? लॉर्ड कृष्णा. यस. किसने बोला? मामी. मी यहाँ पे एक मेरे को नाम नहीं आ रहा एक्चुअली, क्योंकि वो हिमांशी. यस मैम. हिमांशी, कैन यू प्लीज ओपन योर कैमरा? मैम श्योर. ग्रेट हिमांशी. एक काम करो, हाँ जी मैम. हाथ ऐसे लेकर चलो. ऐसे. ऐसे सामने. हाँ जी. सामने स्ट्रेट. हाँ एक जी. हैंड, वन हैंड. यस मैम. इसको ऐसे फोल्ड करो. अब इसको ऐसे टैप करो. शाबाश. ओके. ओके. लॉर्ड कृष्णा वर्ल्ड्स नंबर 1 काउंसलर, जिन्होंने कभी भी एडवाइस नहीं दी. उन्होंने हमेशा क्या किया? कौन बताएगा? हम सिर्फ गाइड करा, हम वो बोलते थे. गाइड करा. डिसीजंस तो सारे किसने लिए? अर्जुन ने. अर्जुन ने खुद लिए. राइट. आपने भी यही करना है. नाउ yes, there is a slight difference between guidance and counseling, जिसको usually mix up करा जाता है. That you need to understand कि क्या डिफरेंस है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में. गाइडेंस रेफर्स टू एन एडवाइस और अ रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ सुपीरियर. ये जो गाइडेंस है ये दिस इज एक्चुअली एडवाइस और रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक सुपीरियर आपको प्रोवाइड करता है ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दैट डिफिकल्टी. मे बी अ टीचर इज हेल्पिंग अ स्टूडेंट, उसको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो टीचर इज हेल्पिंग, सो दैट कम्स अ गाइडेंस. वहां पर गाइडेंस हो रही है. आप पीएचडी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो जिसमें आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देन यू आर गोइंग टू अ सुपीरियर फॉर दैट एडवाइस. वो आपकी गाइडेंस है. आप करियर काउंसलिंग में आप कंफ्यूज हो, आपने करना क्या है, वो आपके लिए गाइडेंस है. लेकिन काउंसलिंग में क्या होता है? दैट इज द प्रोफेशनल हेल्प गिवन बाय अ प्रोफेशनल टू ओवरकम फ्रॉम पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. यहाँ पर पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, वहां पे एकेडमिक एंड करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है गाइडेंस. राइट. गाइडेंस में प्रिवेंटिव होता है, मींस कि हम उसको पहले गाइड कर रहे हैं ताकि आगे की प्रॉब्लम ना आए. लेकिन काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ गई है, नाउ वी आर हेल्पिंग टू प्रोवाइड द रेमेडी एंड टू क्योर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. राइट. नाउ गाइडेंस इज कॉम्प्रिहेंसिव, ऊपर से होती है, लेकिन काउंसलिंग जो है वो इन डेप्थ होती है. जैसे मैंने कहा, एक नोट आप
शुरू कर रहे हैं, क्लाइंट एक सिम्टम के साथ आ रहा है, लेकिन नीचे 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 और सारे सिम्टम्स जो है वो दिखते चले जाते हैं. सो इन डेप्थ होता है. जब आप खोलना शुरू करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आना शुरू हो जाती है बात. What it does, basically it helps individual to choose what they value most. करियर काउंसलिंग में क्या होता है, वो हेल्प करता है इंडिविजुअल को कि वो कौन से सब्जेक्ट को वैल्यू करता है, कौन से करियर को वैल्यू करता है, उसको हमें फिगर आउट करके क्लाइंट के सामने ला रहा है. लेकिन काउंसलिंग में क्या होता है, हम उसको करते हैं ताकि उसका जो पर्सपेक्टिव है, जो वो स्टक हो गया है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो पाए और वो खुद ही अपने सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर पाए, खुद ही अपने सॉल्यूशन को फिगर आउट कर पाए. Now, guidance basically deals with education and career related issues. Counseling deals with your personal, your psychological and your emotional issues. Then, guidance is provided by any person superior or expert in that particular area, whereas counseling is provided by a person who actually possesses, high level of skill and professional training. In privacy, guidance, career counseling or guidance में that is open and less private होता है, but counseling में, yes, confidentiality has to happen. डिसीजन मेकिंग बाय द गाइड होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग बाय द क्लाइंट होता है, राइट. नाउ डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी. काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी के बीच में क्या डिफरेंस है? काउंसलिंग बेसिकली जैसा हमने कहा, हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड क्राइसिस, and you have to encourage, as a counselor you have to encourage the client to take a positive step so that you can resolve the particular issue. मेरे साइकोथेरेपी क्या है कि और ज्यादा इन डेप्थ होती है. काउंसलिंग जो है वो कुछ लिमिटेड पीरियड तक होती है, लेकिन साइकोथेरेपी जो है वो लॉन्गर पीरियड तक चलती है. जो इसका नेचर होता है, दैट इज कंसर्न विद काउंसलिंग इज बेसिकली कंसर्न विद प्रैक्टिकल इमीडिएट इश्यूज. इमीडिएट इश्यूज में हम लेकर जाते हैं, लेकिन जब आपका इन डेप्थ और नॉट्स खुलती चली जाती है और सेशंस लंबे हो जाते हैं, देन दैट बिकम्स योर साइकोथेरेपी, जिसमें आप उसकी पर्सनल चाइल्डहुड हिस्ट्री में ले रहे हैं. जैसे इनफैक्ट अभी केस इज गोइंग ऑन एंड दैट केस इज एक्चुअली पास्ट की उसकी बहुत सारी मेमोरीज ऐसी हैं जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट उसका बहुत डिस्टर्ब हो रहा है. उस प्रेजेंट को रिजॉल्व करने के लिए हमें पास्ट को, जो उसकी पास्ट की जो अनरिजॉल्व उसके इश्यूज हैं, उसको हमें रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, राइट. ओके, नाउ ड्यूरेशन इज शॉर्ट टर्म इन काउंसलिंग. इन साइकोथेरेपी में इट इज लॉन्ग टर्म. नाउ एसेंशियल्स ऑफ काउंसलिंग. हाउ इज काउंसलिंग रिलेशनशिप डिफरेंट फ्रॉम अदर्स रिलेशनशिप? यस, कौन बताएगा काउंसलिंग रिलेशनशिप how it is different from other relationships? Ma'am, we don't know each other in counseling. When it comes to any other relationship, we think in an emotional manner. And when we are counseling as a counselor, we are at a intellect level wherein we can counsel the patient more clearly and without any कोई स्वार्थ नहीं है मैम इसमें कि वी हैव नो बेनिफिट विद इट. हम लोग हमारा फायदा नहीं देख रहे हैं इसमें. वी आर जस्ट लुकिंग एट द पेशेंट, द क्लाइंट. यस, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद हम इसको इकट्ठे समझते हैं. हाउ इज काउंसलिंग रिलेशनशिप सिमिलर टू अदर रिलेशनशिप्स? It's two-way. As in a relationship, there should be two-way communication. Same with counseling relationship. It should be two-way. Like one should not feel like he's just into it. Perfect. So let's understand the relationship with counselor and client. Power difference. It is not an equal relationship. So यहाँ पर एक power difference है. यहाँ पर skill है counselor and यहाँ पर problem में है client. So यहाँ पर counselor की responsibility to help the client. Whereas in other relationship, it may or may not involve, a power difference may or may not be there. Maybe you are, in a relationship with your friend or with anyone. So वहाँ पर ये चीज नहीं होती है. Then यहाँ पर क्या है? Client is in need. Client को need है, जरूरत है, problem में है, वो आपके पास आया है. Then focus यहाँ पर क्या है? Client की जरूरत पर है, counselor की जरूरत पर नहीं है. Whereas in other relationships, यहाँ पे आप दोनों की need को देखते हो. लेकिन यहाँ पर नीड किसकी है? किसमें फोकस करना है? उनकी क्लाइंट्स में, नॉट ऑन काउंसलर्स में. टाइम लिमिट, आपके पास लग्जरी नहीं है कि इस रिलेशनशिप को आप एंजॉय करते रहो. आपने विद इन द टाइम फ्रेम इस सेशन को वाइंड अप करना है. एंड दिस इज व्हाई एलिमेंट्स ऑफ ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस आर इंपॉर्टेंट.
ट्रस्ट तभी बनता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक्सेप्टेंस होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो काउंसलिंग में फर्स्ट डे से लेकर लास्ट सेशन तक आपका चलता है। ट्रस्ट टूट गया ना इन बिटवीन में, क्लाइंट टूट जाएगा, वापस उस पर चला जाएगा जहां से उसने। So that's very important. How to build up trust? We'll discuss that in the next session. Then confidentiality is essential and must be discussed with the client. तो यहाँ पर हम confidentiality की बात करते हैं, जैसे हमने कहा फ्रेंड्स में कभी इसीलिए होता है कि आप जब घर पर कहते हैं कि घर की काउंसलिंग इसीलिए कभी मत करो, ठीक है? That is the only reason, because of confidentiality. And boundaries and limits are placed on the relationship, right? So यहाँ पर एक boundaries है, limits है जो placed होती है relationship में. इसमें developing a counseling relationship is just like you are developing any other kind of relationship, but यहाँ पर शुरुआत कौन करता है? काउंसलर करता है. काउंसलर यहाँ पे इनिशिएट करता है रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में. काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेफ एंड ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करे जहाँ पे रिलेशनशिप उनका ग्रो. And one thing, you have to be very careful. Since you are a budding psychologist, जब क्लाइंट एक नीड में होता है और जब इमोशनल नीड उसको लगता है कि सामने वाला पर्सन मेरी इमोशनल नीड को समझ रहा है, या ये पर्सन का बेस्ट है जो मेरी इमोशनल नीड को समझ रहा है, क्योंकि अभी तक उसकी किसी ने इमोशनल नीड को नहीं समझा. आप उसकी जब इमोशनल नीड को समझ रहे हो, many chances are like that client may start falling for you. There you need to understand वहां पर कैसे गैप मेंटेन करना है, किस तरीके से बात करनी है. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वेरी, ठीक है? वो आने वाले सेशंस में करेंगे. ऑलराइट, नाउ ओके, नाउ a case. I want any one of you to please read this case in front of you. Yes, who will read out this case for everyone? Amir? Can I? Yes, please. Ma'am, who? किसने बोला था? Ma'am, I guess I said and someone else also said. कोई भी बोलो. Yeah, I said. Rukaya, you can do it. Okay. So Shrishti has been a business student pursuing an MBA. However, she found dealing with facts and figures boring. So she quit. After a few months of confusion, she went to see a career specialist in examining her interest. She found she liked working with people. That is it. I will become a counselor. That way, I can assist all nervous, stressed, and overeducated business types who are bored with their jobs. And all I have to do is listen. Sweet. Do you think Shrishti requires more of qualities to become a counselor? Yes. Do you think Srishti requires more of qualities to become a counselor? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Becoming a counselor is not an easy task. कहते हैं बातें तो करनी है, कोई भी कर लेगा, लेकिन बातें किस ढंग से करनी है, that matters a lot. ठीक है? Okay. Now, I'll share a small video with you. Just now, this is an empathy game. Okay. Put yourself there in the other kid's shoes. Yes, it's the empathy game, and it's time to see if you can guess what to say based on how someone looks and acts. Are you ready to find out if you have empathy, contestants? All right, here we go. You see someone crying because they got hurt on the playground. Is it empathy or not empathy to say, "Stop crying, don't be such a baby"? Yes, it's empathy or not empathy?
Ma'am, it's not empathy. Not empathy. It's Sure? not Sure? No. Perfect. Let's see. No, that's not empathy. You can choose what to say by asking yourself if you would like it if someone said that to you. What if instead you say, Are you okay? Can I help you? Should I get an adult? yes, that's being kind and responsible. Good job, contestants. We get to go on to level 2. You see someone who looks frustrated while doing schoolwork, and if it's okay to talk to them, is it empathy or not empathy to say, You sure are dumb. Not empathy. That's not empathy. No, that could really hurt their feelings and even make them feel ashamed. Try to imagine how they feel. What if instead you say, Don't feel bad. Keep trying and you'll understand. Yes, that's a wonderful thing to say. You're a great person. Level 3. You see someone who looks really happy. Is it empathy or not empathy to say, Stop acting so weird. No, that's not empathy. Everyone deserves to feel happy once in a while. People like you better when you show you care about them. What if instead you say, I'm really glad you're feeling so good. Yes, sharing other people's good moods can make you feel happy too. Fabulous job, contestants. Level 4. You see someone looking really sad, and they say a bad thing happened to them. Is it empathy or not empathy to say, Quit complaining. Nobody cares. No, that's not empathy. That will make them feel even worse. How would you feel if someone said that to you? What if instead you say, I'm so sorry to hear that. Is there anything I can do to make things better? Yes, knowing someone cares helps. Just by showing you care, you can make other people feel better. Well, contestants, you've done such a marvelous job that we get to go on to the Bonus level. You see other kids picking on someone who looks really sad and scared. Is it empathy or not empathy to say, Now you're gonna get it. No, that's not empathy. Saying things like that only makes it worse. When people are in trouble, you need to help, as long as you don't get in trouble yourself. What if instead you say, Come with me. Let's get away from these guys. Let's go tell an adult. Great job! You saved the day by knowing what to say. You have empathy. And you win at the empathy game. Empathy. Hanji. So I'm sure that you would able to understand what exactly empathy and not empathy. समझ में आया अच्छे से? Yes, ma'am. Great. Yes, ma'am. आज हमने क्या क्या कवर किया? कौन इसका क्विक रिकैप देगा? Yes, please. We start with what is counseling. Then we understand the different words that counseling symbolize with every alphabet. Then the aim, then the qualities of a counselor, and then difference between guidance and counseling. We have learned difference between counseling and psychotherapy,
And the last is that empathy difference. Yes, ma'am, this one. Okay, so इसमें से जो हमने क्वालिटीज करी आज, उसमें से कौन सी लगती है कि कौन सी क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छे से है एंड कौन सी क्वालिटी आपको लगता है मिस आउट एंड यू नीड टू वर्क अपॉन बोथ? क्विकली राइट योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स एवरीवन. पहले लिखेंगे कौन सी क्वालिटी यू फील लाइक कि आपके अंदर ज्यादा है, और कौन सी क्वालिटी आपको लगता है कि टू बिकम अ बेस्ट काउंसलर मुझे इसके ऊपर और मास्टरी हासिल करनी है, ये मेरा वीक एरिया है. Okay, so you are very positive and comfortable. You can talk very easily to others. Great. And what is the weak area that you feel like this is the area that you need to master over? ये थोड़ा सा weak area है जिसको मुझे master करने की जरूरत है, जिस पे develop करने की जरूरत है. Okay. Okay. Perfect. I have respect for others, have positive regard. Okay. What is your weak area, Tavneet? Yeah, I'm a good listener. I'm a confident person, but yes, you are mixing up empathy and sympathy, right? But I'm sure कि आज से आप समझ पाए होंगे कि what is empathy, what is sympathy. और जब हम इसके अभी practical experiential exercises करेंगे throughout the week, so आप इसमें बहुत अच्छे से mastery हासिल कर पाओगे. Ma'am, actually, I cannot put that. मतलब I take it in a negative way. अरे ये हो गया, अरे ये तो बहुत गलत हो गया आपके साथ. You know, that is what is my thinking. But I don't say, I should not interrupt in that talk. What is according to you, what you showed us. So that is where I am lacking. आपको क्या लगता है क्या वो सही तरीका है? नहीं, मैम मैं actually मेरे विचार उसमें I am putting my thoughts in that patient. So I think I am misguiding the patient. तो वही है, खुद के थॉट्स को बैक साइड पे ले जाना है, बिल्कुल माइंड को ब्लैंक कर देना है. मैम जब भी वो पेशेंट बोलता है ना तो व्हाट आई से इज अरे मेरे साथ अगर ऐसा हुआ होता तो मैंने ऐसा किया होता. दिस इज नॉट द वे. मैं उसको मेरे शूज में बिठा रही हूँ, मैं उसके शूज में नहीं जा रही हूँ. राइट. दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी दैट वी डिड, यू नो, सर्कल वाला. वो हमने उसके डायरेक्शन में साथ मूव करना है, ना कि उसको अपने अकॉर्डिंग मूव करना है. अपने साथ घुमाना है. यू नो, सपोज एक कप है, कप पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है, आप उसके ऊपर और पानी डालोगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा. तो आपने अपना कप भरा हुआ है, क्लाइंट अपना डाल रहा है तो ओवरफ्लो करके बाहर निकल रहा है. आपने पहले अपने कप को खाली करना है ताकि पूरी इंफॉर्मेशन को ले पाओ. लेकिन one thing for sure, that's my request to everyone, you know, बहुत बार हमने ये भी देखा है, ये चीज आती है कि जब आप क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, ठीक है, यू फील लाइक कि यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, यार ये तो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, आप अपने साथ रिलेट करते हैं. बट प्लीज खुद के साथ के साथ आपने एक अपना मी टाइम निकालना है. खुद को आपने रोज पॉजिटिव कैसे मैम यू आर ऑन म्यूट, ताकि आप डेली अपने आप को चार्ज कर पाओ. जब शुरुआत में आप ये पैटर्न रखेंगे ना, वो फिर आपके पैटर्न के अंदर आ जाएगा. फिर वो आप मैम आप म्यूट हो गए थे क्या? मैम आप म्यूट हो गए थे. क्या करना चाहिए रोज अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए? सो आपने क्या करना है, डेली का एक मी टाइम बनाना है जिसमें आप खुद की कोई भी नेगेटिविटी आ रही है उसको वॉश आउट कर पाओ, उसको आपने बिल्डअप नहीं होने देना है. बिकॉज जब आप क्लाइंट की नेगेटिविटी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो आप बार बार जब सुन रहे हैं तो आपके माइंड में भी जा रही है चीजें. So वहां पर you need to understand there is a fine line between your personal and professional life. क्लाइंट की प्रॉब्लम को क्लाइंट तक ही रहने देना है. हमने समझना है अपने माइंड को खाली करके सिर्फ उसको सॉल्यूशन के लिए, अपने अंदर बिठाना नहीं है. पता लगे क्लाइंट तो ठीक हो गया और प्रॉब्लम आपको हो गई है, डिप्रेस आप हो गए हो. ठीक है, तो ये बहुत ही एक टेंडर सा प्रोफेशन है, बहुत जेंटल.
और इन अ वे अगर हम काउंसलिंग की लाइन में नहीं भी जाते बट हम ये सारे पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, आप देखना आपकी कम्युनिकेशन में बहुत फर्क आएगा, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लोग आप मतलब आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव ऑरा आपका जो है वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो आपने करना है। ग्रेट। हाँ जी, सो आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुना, समझा सारी चीजों को। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक तक आपको एक्टिविटीज आएंगी, आपने वो एक्टिविटीज करनी है और उसके आपके एक्सपीरियंस को ग्रुप के अंदर शेयर करना है। एंड नेक्स्ट सैटरडे हम एवरी सैटरडे मिलेंगे 4:30 to 6:30 PM, राइट? Okay, अब ma'am. आप मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे 4:30 to 6:30 PM, मिलते रहेंगे, खिलते रहेंगे। स्माइल ऑन योर फेस। Sure, ma'am. We will be waiting. Okay, bye bye. Take care. Thank you, ma'am. Thank you a Great lot, ma'am. session. Thank you, ma'am. Bye, It was ma'am. wonderful. Most welcome. Bye.